So in today's class, we'll be doing chapter Nasruddin's Aim from your reader book. So before we begin, as we discussed yesterday, can anybody tell me what do you mean by the word aim? What is aim? Ma'am, can I? Not this way. You always know how I ask you. Mohit, can you please do the favor and tell me? Mohit, can you please tell me what is the meaning of the word aim? Yes, I can't see Mohit anymore. Ma'am, Yes. can I speak? Just give me a minute. Wait. Not this way. Hello. Others can write in the chat box, as you always do. Others can, those who know the meaning, can write in the chat box. Okay, so, Sorish will tell me. Wait a minute, Bete, wait a minute. Sorish, what was the meaning of the word aim? Do you remember? We discussed it yesterday. Yes. Yes, Sorish, come again. Avni Sharma, please mute yourself, Bete. You're disturbing the whole class. Yes. Good morning, ma'am. Yes, Beta, good morning. Yes. Ma'am, target. Yes. Target. Yes, very good. So I told you three words related to the same. One was aim. It means target. What was one more word that we discussed? One was the main word was aim, and then I told you target is also the same thing. What was the third word that we can use in it? Use in its place that we have synonym. Kya tha uska ek aur? Goal. Very good. Ma'am, goal. So we had these three words. First is aim, then we have goal, and then we have target. So all these three words are the like goal and target are the synonyms of the word aim. Right now, aim means कि हमारा क्या टारगेट है हम लाइफ में. जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं. मेरे माइंड में क्लियर है कि मैंने क्या बनना है, मेरा गोल क्या है लाइफ में. So that is called an aim. Right, so let us start. Now we are going to talk today in today's chapter about Nasruddin. Now Nasruddin is a person, okay, and what is his aim? Uska kya aim hai? We are going to discuss that. One day Nasruddin was, please everybody look in the books and you'll read with your eyes side by side when I'm reading, like we always do. So one day there's a comma after that, so you need to take a pause. Whenever there's a comma, chota sa pause lena hai hame. So one day Nasruddin was chatting with his friends. What is chatting? How many? I hope everybody of you chat with your friends. But here when we talk about chatting, here the chatting doesn't mean the WhatsApp chat that you do. Actually, chatting is talking only. When you talk to someone, but you are talking to that person informally. Informally means आप बड़े means comfortable होकर उससे बात कर रहे हैं. आप जब अपने टीचर से बात करते हैं तो आप टीचर से बात करेंगे. When you talk to me, then you won't be chatting with me. आप मुझसे chat नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ. You respect me, and that's why when you talk to me, आप थोड़े से words को सोच के use करते हैं. होता है ना, आप बड़ों से बात करते हैं तो आप थोड़ा से words को अपने control करके बात करते हैं. जब आप अपने प्लीज So, जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तब आपको कोई टेंशन नहीं होती. आप सोचते हैं जो मर्जी बोल सकता हूं मैं, कोई वो बुरा नहीं मानेगा. लेकिन जब आप किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा फॉर्मली बोलते हैं. सो चैटिंग मीन्स, यू कैन राइट डाउन टॉकिंग, फॉर्मेलिटी नहीं हो जहाँ पे. एंड चैट, यू चैट विद योर फ्रेंड्स. चैटिंग आप अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं या अपनी एज के कजन्स के साथ करेंगे, लेकिन आप किसी बड़े से जब बात कर रहे हैं, यू डोंट कॉल इट चैटिंग. So if you can see here, please underline the word chatting and you can write the meaning. It's talking informally without any formality. I hope everybody is writing the answers. I hope you are writing the answers in the books. I mean this meanings of the words. Should we move further? Okay. So one day Nasruddin was chatting with his friends. वो अपने friends के पास खड़ा होकर बातें कर रहा था. So he began to boast. Now, Meher, can you tell me the meaning of the word boast? Unmute yourself. Can anybody else? If Meher, yes, Meher, can you tell me? Do you know the meaning of the word boast? Means हिंदी में भी आप बता सकते हो. I just want to know whether you understand the meaning or not. No? Bhumi.
Can you please tell me the meaning? Unmute yourself. Boast karna. Wait a minute. Hold on. Hold on. No, but if you don't know, please nod your head. At least I can ask somebody else. Yes, Himansh Srivastav. मैम Yes. एक्चुअली मैम बोस्ट मीन्स खुद को ज्यादा समझना. खुद को ज्यादा समझना में शो ऑफ करना. आपको पता है ना, आपके फ्रेंड्स कई बार कोई चीज लेके आते हैं और वो कहते हैं ओह ये तो बड़ी कॉस्टली है. मेरे पापा तो मेरे लिए कहाँ अब्रॉड से लाए हैं. तो वो क्या कर रहे हैं? शो ऑफ कर रहे हैं. किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, उसकी ज्यादा तारीफ मैम करना. अपनी तारीफ करना. हाँ, बहुत ज्यादा करना. दैट इज कॉल्ड बोस्ट. तो यू कैन राइट डाउन द मीनिंग ऑफ बोस्ट एज शो ऑफ करना. किसी चीज का शो ऑफ करना किसी को. Right? Write down the meaning side by side, bete. Okay. So Nasruddin began to boast. Nasruddin अपनी बातों के लिए boast करने लगा. अब क्या boast कर रहा है वो? क्या तारीफ कर रहा है? No one can match my skill in archery. मेरा जो archery में skill है, जो मेरे में talent है archery करने का. Archery we have discussed yesterday. Archery क्या चीज होती है? जो हम bow and arrow से जो sports करते हैं, game खेलते हैं, that is called archery. So कह रहा है कि जो archery में जो skill है ना मेरे में, बहुत अच्छा है. मतलब मैं जितना अच्छा, नो वन कैन मैच नहीं कर सकता. मतलब कि मेरे जैसा वो काम कोई नहीं कर सकता. हम लोग कई बातों में सोचते हैं ना कि मेरे जैसा तो कोई कर ही नहीं सकता. सो नसरुद्दीन भी अपने फ्रेंड्स को कह रहा है कि मेरे जो स्किल्स हैं, स्किल मीन्स मेरे में जो टैलेंट है, जो मेरे में टैलेंट है ना आर्चरी का, मैं इतनी अच्छी आर्चरी करता हूँ कि कोई मेरे जैसे कर ही नहीं सकता. तो ये वो क्या कर रहा है? ये वो बोस्ट कर रहा है, वो शो ऑफ कर रहा है इस चीज के लिए. राइट? सो अब आगे वो क्या कह रहा है? आई स्ट्रिंग द बो, take aim and shoot arrow. Right? अब वो क्या कह रहा है? I string the bow. What do you mean by string the bow? String का मतलब क्या होता है? एक string होता है जो कोई string बोलते हैं हम, कई बार माला को भी बोल देते हैं string, या धागा होता है जो उसको बोल देते हैं string. लेकिन यहाँ पे string जो है वो क्या आ रहा है? As a verb आ रहा है. You can write down in bracket with it कि यहाँ पे string एक वर्ब की तरह आ रहा है. स्ट्रिंग करना क्या होता है? इफ यू पीपल हैव वॉच्ड रामायण या आपने पढ़ी है तो आपको याद होगा जब लॉर्ड राम की जब शादी होने वाली थी तो उन्हें एक बड़ा सा बो मिला था जब उन्होंने सीता से मैरिज करनी थी, और उन्हें उसको ऊपर क्या करना था? थ्रेड को बांधना था. देखा ना आपने? देयर इज अ थ्रेड. मतलब तना हुआ. आपने देखा ना ये? इफ यू कैन सी हियर इन द पिक्चर आल्सो, यहाँ एरो में ये थ्रेड है. ये जो थ्रेड है उसको कैसे करते हैं? एरो यूज करने से पहले उस स्ट्रिंग को ना उसके ऊपर रैप करते हैं, एक साइड से खींच के दूसरी साइड पर उस पर नॉट लगा देते हैं. तो ये जो एक्शन है थ्रेड को एक साइड से दूसरी साइड पे नॉट लगाने का, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग करना. यानी कि हियर इट इज स्ट्रिंग एज, वेट अ मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस. तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग एज वर्ब. ये जो थ्रेड होता है इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, लेकिन वो नाउन होता है. यहाँ पे वो कह रहा है स्ट्रिंग द बो, यानी कि बो के ऊपर स्ट्रिंग को रैप करना. तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या हो गया? एज अ वर्ब हो जाएगा. तो इसको बोल सकते हैं एज अ वर्ब. इसका मतलब होता है फिट अ स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग को फिट करना, लगाना कहीं पे. यस, हु वाज इट हु वाज सेइंग एक्सक्यूज मी मैम? यस मैम. यस बेटे, यस. राइट? तो अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है I string the bow. मैं बो पे स्ट्रिंग लगाता हूँ, बो लेता हूँ, उसपे स्ट्रिंग को उस पे नॉट लगाता हूँ. टेक द एम. टेक द एम मतलब कि अपना एम को देखता हूँ. टेक करना मतलब सिर्फ जो मेरा टारगेट है उसकी तरफ मैं क्या करता हूँ? देखता हूँ. एंड शूट द एरो, और उसके बाद जो बो है उससे एरो जो है वो मैं शूट कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ. वुश. नाउ व्हाट इज दिस वुश? व्हाट इज दिस वुश? It is the sound that an arrow makes. ये वो साउंड होती है. जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं ना, आवाज आती है. यस, जैसे एरो को जब वो छोड़ेगा तो वो जो आवाज आती है उसके लिए उन्होंने ये साउंड वर्ड यूज किया है, बुश. द एरो, प्लीज लुक एट द बुक्स. द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट. उसने कहा देखना अभी मैंने छोड़ा ना एरो, और ये जो एरो है ना मेरे, ये बिल्कुल कहाँ? राइट ऑन द टारगेट. राइट ऑन द टारगेट मीन्स बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर ही जाके टच करेगा बिल्कुल. हियरिंग दिस मीन्स ये बात सुनकर. हियर करना मतलब सुनना ना. उसकी ये वाली बात सुन के वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली बॉट अ बो एंड सम एरोज. जब वो इतनी शो ऑफ कर रहा था, इतनी बोस्ट कर रहा था, उसके फ्रेंड्स ने सोचा चलो इसका टेस्ट लेते हैं. उसके फ्रेंड्स इमीडिएटली मीन्स क्विकली, उसके फ्रेंड जो थे उनमें से एक फ्रेंड गया और जल्दी से बो और एरोज ले आया.
वो क्या क्यों लाया था, क्योंकि वो चेक करना चाहता था उसको. नाउ गिविंग देम टू नसरुद्दीन ही सेड, और उसने वो बो और वो एरोस नसरुद्दीन को दिए, और देते देते उसके हाथ में पकड़ाते हुए क्या कहा, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोस, ये लो नसरुद्दीन ये बो पकड़ो और ये एरोस पकड़ो. अब क्या करने लगे हैं वो उससे उसका टेस्ट लेने लगे हैं. प्लीज माइंड योर कैमरास एवरीबडी. I'm looking at all of you. Suzanne, please pay attention, everybody. Okay. Then pointing towards a target, और उसने एक टारगेट दिया उसको, ठीक है, पॉइंट, और उसकी तरफ पॉइंट आउट किया कि ये टारगेट है. Then pointing towards a target, he said, और उसने उसके फ्रेंड ने उसको एक टारगेट दिया और क्या कहा, aim at this target and shoot an arrow. कि ये जो मैंने तुम्हें पॉइंट दे दिया ना, यहाँ पे अपना जो एरो है उसको शूट करो, ठीक है, और उस पे एम करो. एम करो मींस उस पे अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि वो तुम्हारा टारगेट है जो पॉइंट मैंने तुम दिया, और उसके बाद वहां पे एरो को क्या करो, शूट करो. नाउ नेक्स्ट पेज प्लीज एवरीबडी. Suzanne, are you looking into your book? Show me a book, Suzanne. Suzanne, show me a book. Very good. Good. Okay. Nasruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target, and shot an arrow. Now, what is held? It is a second form of some verb. Can you please quickly write in the chat box? He held is second form of which verb? This is why you're giving the wrong answer, because you are in such a hurry that you don't listen to what the teacher is asking. मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था held word कौन से verb का second form है, and so many students have written the correct answer in the chat box. It is the second form of the word hold. Hold करना, किसी चीज को अपने हाथ में पकड़ना. I'm holding this chalk in my hand, right? So hold का second form होता है held. क्योंकि ये स्टोरी पास्ट की है, पुरानी स्टोरी हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सारी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है. सो नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स. नसरुद्दीन ने वो जो बो था वो अपने हाथों में पकड़ लिया. स्ट्रंग इट. नाउ कैन यू टेल मी स्ट्रंग इज व्हाट वर्ड? क्विकली कैन यू टेल मी स्ट्रंग वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? स्ट्रंग कौन सा वर्ड है? इज इट लुकिंग समवट ऑड? फर्स्ट टाइम सुना स्ट्रंग वर्ड? स्ट्रंग वर्ड क्या होगा? Can anybody guess what is strong? Shoot. String. Yes, Yuvraj. It is shoot ka second form. It is again strong. You can write here on the page. Strong word is second form of past tense of string. Yes, string ka second form. Right? Okay. So strung. अब वो क्या कह रहे हैं? Nasruddin held the bow in his hands, strung it. उसने bow को अपने हाथों में पकड़ा और उस पे string लगा. Please mute yourself. और उस पे string लगाई. Aimed at the target. Next उसने क्या किया? टारगेट की तरफ देखा कि मेरे को कहाँ पे शूट करना है, किस पॉइंट पे शूट करना है, उसकी तरफ देखा. And shot an arrow. A short word again is the second form of, quickly write down the word. Short, S-H-O-T, short is the second form of which verb? In the chat box only, nobody will unmute, right? Very good, Mankaran has already given the answer. Arnav has given the answer. Very good, Niti. Yes, it is very good, Ishan. It is the second form of shoot, right? So यहाँ पे जितने भी verbs आ रहे हैं आपके सबकी second form यूज हो रही है. Hold की जगह held, string की जगह strung, aim की जगह aimed, and fourth shoot की जगह shot, right? So सारा past tense में हमारी स्टोरी चल रही है. So नसरुद्दीन ने फटाफट से बो अपने हाथ में पकड़ा, उसमें एरो उसे स्ट्रिंग किया, अपने एम की तरफ देखा और एरो को शूट कर दिया. Now woo again. Woo word is telling the sound of the arrow. Sound ने क्या उस एरो के छूटने से क्या साउंड आई थी? The arrow didn't hit the target. एरो ने टारगेट को हिट नहीं किया. Why? Why? Can anybody tell me? Can anybody guess? Vivek, can you tell me क्यों उसने हिट क्यों नहीं किया? Yes, Vivek, quickly unmute yourself and tell me. वो तो बहुत चैंपियन था, क्यों नहीं किया? मैम उसको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था तो
उसे और कॉन्फिडेंस भी हो गया था, लेकिन उसको एक्चुअल में आती नहीं थी एक्चुअली. ही वॉज नॉट दैट गुड. वो अपनी फेक, अपनी झूठी तारीफें कर रहा था. ठीक है, सो वो फेक तारीफें कर रहा था, इसीलिए तो उसके फ्रेंड्स को पता चल गया, और इसीलिए तो उसके फ्रेंड्स बो और एरो लेके आए कि इसे पकड़ते हैं यहाँ पर. ये झूठ बोल रहा है, इसको नहीं आती है इतनी अच्छी एक्चुअली. राइट, वेरी गुड मनवीर. यस, ही वाज टेलिंग अ लाई. राइट, नाउ द एरो डिडंट हिट द टारगेट. एरो टारगेट तक नहीं पहुंचा. इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब what is the meaning of the word instead? I think we have already done this word in some other chapter also. Instead, can anybody please quickly tell me what is the meaning of the word instead? हमने ये word सिर्फ पहले chapter में किया. बल्कि, yes Neha, you're right. हिंदी में आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बल्कि. वो टारगेट पे तो नहीं गया, उसकी जगह. इंस्टेड मींस उसकी जगह, in place of that, उसकी जगह. अपने टारगेट पे जाने की जगह वो क्या हुआ? इट फेल समवेयर इन द मिडल. वो रास्ते में ही कहीं पे गिर गया. ठीक है, वो वहां तक पहुंचा ही नहीं जहां उसने हिट करना था. हा 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 हा. नाउ व्हाट इज दिस हा 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 हा? हु इज लाफिंग? हु इज लाफिंग हियर विद हा 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 हा? Nasruddin? Or who's it? मैम इज फ्रेंड. Friends. This is what you people do. ये आप लोग भी करते हो ना, अपने फ्रेंड्स में फटाफट से हंसते हो. So जैसे उसका जो एरो था रास्ते में गिरा, उसके सारे फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगे. His friends started laughing. They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" और उसके फ्रेंड्स ने उसको कहा कि नसरुद्दीन, ये तुम्हारा बेस्ट एम है, यानी कि तुम इतना अच्छा कर सकते हो, ये तुम्हारा बेस्ट था. Oh no, not at all, said Nasruddin. Nasruddin, नहीं नहीं, ये मेरा बेस्ट था ही नहीं, ये तो मैंने बस ऐसे ही. अब वो क्या है, अपने आप को Nasruddin defending himself, said Nasruddin defending himself. Defend करने का क्या मतलब होता है? What is the meaning of the word defend? Defend, defend किसी means चीज से बचना. किसी चीज से बचना. अपने आप को बचाना, अपने फेवर में बोलना. आप पे कोई, आपको कोई कहता है कि ऐसे तूने ऐसे किया, आपके तो नहीं नहीं मैंने ऐसे नहीं किया, तो वो तो ऐसे हुआ था. तो आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को उस चीज से बचा रहे हैं. डिफेंड करना मतलब सेव करना, खुद को सेव करना, अपने आप को सेव करना या किसी और को सेव करना. राइट, सो डिफेंड. उसके Excuse ने, यस बेटे, यस. मैम इंस्टेड. So Nasruddin said, no, not at all. उसने कहा नहीं नहीं, अपने आप को बचाते हुए उसने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा बेस्ट एम नहीं था. This wasn't my aim. It was Azad's aim. Now who's Azad? Azad is one of his friends. Azad उसका एक फ्रेंड है. उसने कहा ये मेरा टारगेट नहीं था, ये किसका था? ये आजाद का था. ऐसा हो सकता है क्या कि मैं किसी और की जगह कर सकती हूँ उसका टारगेट, उसकी जगह मैं कर सकती हूँ ये काम? नहीं कर सकते ना. So he was again telling a lie. He said, this wasn't my aim, it was Azad's aim. उसने कहा कि मेरे फ्रेंड का था ये aim. मैं तो ये दिखा रहा हूँ कि अगर आजाद शूट करेगा तो वो कैसे करेगा. Okay, now saying this, Nasruddin picked up another arrow. और ये कहते कहते उसने क्या किया? दूसरा एरो उठाया. Once again, अब दोबारा से उसने सेम वही वाला काम किया. He strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. उसने दोबारा से वही सारा काम किया और एरो फिर से शूट किया. अब जो उसका एरो था, सपोज वो एरो यहाँ से स्टार्ट कर रहा था और उसका टारगेट यहाँ था. जब उसका एरो पहले गिरा तो उसका एरो सपोज यहाँ पे आके गिर गया. राइट, अब उसने जब सेकेंड टाइम किया तो अभी भी उसका एरो पूरे टारगेट पे नहीं गया, उससे थोड़ा सा लिटिल फर्दर. फर्दर मींस उससे थोड़ा सा. वाहे गुरु मेरे बच्चे का दो. वेरी गुड बेटे. हु इज दिस डिस्टर्बिंग द क्लास? सो नेक्स्ट टाइम जब उसने सेकंड टाइम टारगेट सेट किया, एरो शूट किया, तो वो थोड़ा सा आगे जाके गिरा. पहले सपोज यहाँ गिरा था तो वो थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन वो टारगेट तक अभी भी नहीं पहुंचा उसका. राइट, नाउ this time the arrow felt a little further. Further समझ आ गया? Further means थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा सा आगे. Okay, now come to the next page. But it certainly didn't hit the target. लेकिन वो अभी भी, certainly means surely, अभी भी जो उसका arrow था वो टारगेट तक हिट नहीं किया, वो टारगेट तक नहीं पहुंचा. Right? They asked Nasruddin, and this must be. Just a minute, give me a minute. Let me check who's this.